Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, the nervous system. The nervous system is made up of the brain and spinal cord. Together they make the central nervous system, that is CNS. Along with them, there is a network of nerves that extends from the CNS to all parts of the body. This network of nerves is like roads by which the brain sends and receives information about what is happening in the body and around it. Let us know more about the various parts of the nervous system. अब आपका जो नर्वस सिस्टम है एक्चुअली वो किससे बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से, ओके, एंड साथ में ये बनाते हैं CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इसके अलावा यहाँ पे आपका एक नेटवर्क है नर्व्स का जो कि आपका एक्सटेंड होता है फ्रॉम द CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की हर पार्ट तक, राइट. तो ये जो नेटवर्क होता है नर्व्स का एक्चुअल में इज लाइक रोड, जिसमें ब्रेन जो है क्या करता है, इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, रिसीव करता है कि क्या हो रहा है बॉडी में या इसके अराउंड, राइट. तो चलिए अब नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले ब्रेन. द ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम. रिमेंबर दैट it is the most complicated organ too. The brain is like a supercomputer. It receives various pieces of information from different parts of the body. It stores all the information received as memory. Next, it processes that information using the past experiences. Then, it takes a decision and finally sends instructions to different parts about what to do. Humans are superior to all other animals because of their highly developed brains. ब्रेन एक्चुअली में आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, राइट, एंड मेन ऑर्गन है नर्वस सिस्टम का. ब्रेन इज़ लाइक अ सुपर कंप्यूटर. ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, सबको स्टोर करता है एंड जो भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है उनको स्टोर करता है इस मेमोरी. फिर ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते, फिर ये डिसीजन लेता है एंड फाइनली इंस्ट्रक्शंस को भेजता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक कि अब क्या करना है, ओके. तो ह्यूमंस इसीलिए बाकी दूसरे एनिमल से सुपीरियर है क्योंकि इनका जो ब्रेन है वो हाईली डेवलप्ड है. द ब्रेन इज वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट. ऑन द आउटसाइड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड बोनी स्कल. Inside the skull, it is wrapped in 3 layers of tissues and floats in a special shock-proof fluid. This fluid prevents the brain from getting bumped on the inside of the skull as your body moves around. The brain has many different parts that work together. We shall study only 3 major parts here. Brain बहुत ही soft and delicate होता है. बाहर इसको protect करता है hard bony skull, right? जिसके बारे में अपने previous chapter में भी पढ़ा था. अब skull के inside ये 3 layers of tissues में आपका wrapped होता है and then ये float करता है special shock-proof fluid में, right? अब brain के different parts होते हैं जो साथ में काम करते हैं, okay? तो सबसे पहला part है इसका cerebrum. It is the biggest part of the brain, remember that, and makes up about 80%, 85% of the brain's weight. It has many grooves and folds on its surface so that it can fit into the skull. Okay, अब ये biggest part है आपका brain का, इसमें आपके grooves होते हैं, folds होते हैं इसके surface में ताकि ये skull में fit हो सके. The cerebrum is responsible for memory, learning, intelligence, and reasoning. It helps us to make all the decisions and control emotions. The cerebrum has 2 halves. The right half controls the left side of the body, and the left half controls the right side of the body. अब देखिए, cerebrum इन सभी चीज़ों के लिए responsible होता है. ओके, जितने भी डिसीजंस आपको लेने, इमोशंस को कंट्रोल करना है, ये सब काम है सेरेब्रम का. इसके 2 हाफ्स होते हैं. जो राइट हाफ होगा वो लेफ्ट साइड, बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, एंड जो लेफ्ट हाफ होगा वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करेगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज सेरिब्लम. इट इज एट द बैक ऑफ द हेड बिलो द सेरिब्रम. इट इज मच स्मॉलर देन द सेरिब्रम एट ओनली ऑफ इट्स साइज. The cerebellum controls balance, movement, and muscle coordination. It is because of the cerebellum that we can stand upright, maintain our balance, and move around. Cerebellum आपके होता है head के back में, cerebrum के below, और ये cerebrum के comparatively smaller होता है size में. Cerebellum जो है वो balance, movement, muscle coordination को control करता है, और because of cerebellum हम stand कर पाते हैं upright, ठीक है, balance अपना maintain करके रख पाते हैं.
Number third is medulla. The medulla, also known as the brain stem, is the lowermost part of the brain. It connects the rest of the brain to the spinal cord. The medulla controls all the function that your body needs to perform to stay alive. For example, like breathing, digesting food and circulating blood. Okay? अच्छा देखिए, अब मेड्यूला को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है. ये लोअर मोस्ट पार्ट है ब्रेन का. ये रेस्ट ऑफ द ब्रेन को कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ. मेड्यूला जो है सारी फंक्शंस को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में, मतलब जो हमारे जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन. राइट. ओके, सो पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड उसके फंक्शंस. पार्ट ऑफ द ब्रेन में देखिए सेरिब्रम. सेरिब्रम क्या करता है? कंट्रोल करता है थॉट को, मूवमेंट को, रीजनिंग को एंड लैंग्वेज को. एंड सेरिब्रम जो है वो कंट्रोल करता है मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर को. एंड मेड्यूला जो है आपको पता है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लाइक ब्रीदिंग, फूड का डाइजेशन या ब्लड का सर्कुलेशन. राइट. नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड. The spinal cord is a bundle of nerves that connects the brain to other parts of the body. It extends from the medulla to almost the end of a spine. It is surrounded and protected by the backbone. The spinal cord is about 43 to 45 centimeter long and approximately as thick as a human finger. Spinal cord आपका bundle of nerves है जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन को बॉडी के दूसरे पार्ट तक. ये आपका मेड्यूला से एक्सटेंड होता है टू द एंड ऑफ द ऑलमोस्ट एंड ऑफ द स्पाइन तक, और ये आपका सराउंडेड होता है, प्रोटेक्टेड होता है बाय द बैकबोन. इसकी देखिए लेंथ इतनी होती है एंड अप्रोक्सीमेटली जितनी एक ह्यूमन फिंगर थिक होती है उतना ये थिक होता है. राइट. It is through the spinal cord that messages travel to and fro between the brain and rest of the body. It also controls certain actions that do not involve the brain. Such actions are called reflex actions. If the spinal cord is damaged, the brain cannot share information with the body properly. Okay, तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है कि आपके जो मैसेजेस है ना वो टू एंड फ्रो, मतलब कि बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी आपके ट्रैवल करते हैं. बहुत सारे एक्शंस को ये कंट्रोल भी करता है जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो ऐसे एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शंस कहा जाता है. अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया है तो ब्रेन जो है फिर वो बॉडी के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता प्रॉपर्ली. राइट. नर्व्स. Nerves are the messengers of the body. They carry messages from the brain and spinal cord to all other body parts and vice versa. Nerves from the head and neck join the brain directly. Nerves from the rest of the body join the spinal cord. Inside each nerve, there is a bundle of nerve fibers. Some nerves are really long, for example, the ones that go all the way from the feet to the spinal cord. अब नर्व्स आपके बॉडी के मैसेंजर्स होते हैं क्योंकि ये मैसेज को कैरी करते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल अदर पार्ट्स एंड वाइस वर्सा. राइट. नर्व्स हेड एंड नेक के वो ज्वाइन होते हैं ब्रेन से डायरेक्टली. नर्व्स फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी से ज्वाइन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में. राइट. हर नर्व के अंदर एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं और कुछ नर्व्स तो बहुत ही लंबी होती है. ओके. न्यूरॉन्स. Nerves are made up of neurons or nerve cells. There are billions of neurons in the nervous system. All neurons have a cell body and one or more fibers. There are two kinds of nerve fibers. Fibers that carry information towards the cell body, called the dendrites, and the fibers that carry information away from it, called axons. आपके जो नर्व्स है वो आपके न्यूरॉन्स या नर्व सेल से बने, तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में. राइट. हर न्यूरॉन की एक सेल बॉडी होती है, एक या एक से ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, तो दो तरह के नर्व फाइबर्स होते हैं. ओके. फाइबर्स जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं टुवर्ड्स द बॉडी सेल, ओके, रिमेंबर दैट, जिन्हें कहा जाता है डेंड्राइट्स. एंड फाइबर्स जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं अवे फ्रॉम इट, जिन्हें कहते हैं एक्सन्स. नाउ, टाइप्स ऑफ नर्व्स. There are three types of nerves. Number one, sensory nerves. They carry messages from the sense organ to the brain or the spinal cord. Number two, motor nerves. They carry messages from the brain to the muscles and glands. And number three, association nerves. They connect sensory nerves and motor nerves and pass messages between them. अब तीन तरह के नर्व्स हैं जिसमें सेंसरी नर्व्स हैं, वो मैसेज को कैरी करती है सेंस ऑर्गन से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक. मोटर नर्व्स मैसेजेस कैरी करते हैं ब्रेन से मसल्स एंड ग्लैंड्स तक.
ओके एंड जो एसोसिएशन नर्व्स होती हैं ये सेंसरी नर्व्स को कनेक्ट करती हैं मोटर नर्व्स को एंड मैसेजेस को फिर उनके बीच में पास करते हैं राइट एक्शंस ऑफ द बॉडी in our day-to-day lives we do many activities for that our body has to perform many actions these actions can be categorized into two main types voluntary actions and involuntary actions अच्छा डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं हमारी बॉडी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है अब इनको दो मेन टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया है वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री राइट वॉलेंट्री एक्शंस these are actions which we do out of our will our brain controls these actions for example when you feel thirsty you pick a glass of water and drink it वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हम अपनी विल से करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं और हमारे ब्रेन जो है इन एक्शंस को कंट्रोल करता है जैसे कि हमें प्यास लगी है तो हम क्या करेंगे ग्लास उठाएंगे उसमें पानी भरेंगे पी लेंगे राइट तो ये आपका वॉलेंट्री एक्शंस है इनवॉलेंट्री एक्शंस these are actions which happen without our will or choice our brain does not control these actions most of the involuntary actions take place inside our body for example the beating of heart gulping down of food etc अब इनवॉलेंट्री एक्शंस है जो हमारी विल या हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं होते हमारा ब्रेन इन्हें कंट्रोल नहीं करता तो ज़्यादातर आपके जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं बॉडी के इनसाइड होते हैं जैसे कि हार्ट की बीटिंग हो रही है गल्पिंग डाउन ऑफ फूड ऑल दीज आर इनवॉलेंट्री एक्शंस राइट रिफ्लेक्स एक्शन ओके अब नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन reflex action is also a kind of involuntary action as the brain is not involved in it moreover the outer organs of our body are engaged in it what happens when you accidentally touch a hot cup of tea you immediately draw your hand back without even thinking how does it happen when your finger touches the hot cup the sensory nerves immediately pass a message to the spinal cord that the object is hot and it can damage the skin so even before this message goes all the way to the brain the spinal cord sends another message through the motor nerves to withdraw the hand immediately so reflex actions do not involve the brain रिफ्लेक्स एक्शन भी आपके काइंड ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन है जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ज़्यादातर आपके जो आउटर ऑर्गन्स होते हैं ना बॉडी के वो आपके इसमें एंगेज होते हैं देखिए जैसे आपने एक हॉट किसी यूटेंसिल को टच कर लिया या हॉट कप है टी का उसको टच कर लिया तो क्या होता है आप इमीडिएटली बिना सोचे ना हाथ हटा लेते हैं तो इतना इमीडिएट एक्शन होता है ये कैसे होता है तो जैसे ही आपके फिंगर्स ने हॉट कप को टच किया तो सेंसरी नर्व्स ने इमीडिएटली मैसेज पास किया स्पाइनल कॉर्ड को कि ऑब्जेक्ट हॉट है ओके और ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है जल्दी से हाथ हटाना है तो इससे पहले कि ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचे स्पाइनल कॉर्ड क्या आता है दूसरा मैसेज सेंड करता है मोटर नर्व्स के थ्रू कि अपना हाथ इमीडिएटली वहां से हटाना है ओके सो रिफ्लेक्स एक्शंस में आपने देखा कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर blinking of your eyes on sudden exposure to the bright light, secretion of saliva in your mouth when you see a hot pizza, you're jumping from the bed when you see a cockroach near you, withdrawing your hand immediately when it is pricked with a thorn, sneezing when dust particles or chili powder enter your nose, raising your arm if a ball is thrown your way. ओके जैसे कि सडन एक्सपोजर होता है ब्राइट लाइट का तो एकदम से आपकी आंखें आप ब्लिंक करते हैं राइट आपके सामने आपकी कोई फेवरेट डिश है या आपका हॉट पिज्ज़ा है बर्गर है और आप भूखे हैं तो सिक्रीशन होता है सलाइवा का अपने आपके माउथ में आपने कॉकरोच देख लिया कोई ऐसा इंसेक्ट देख लिया तो आप अपने एकदम से अपने बेड से कूद पड़ेंगे राइट तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शंस है आपके हाथ में फिंगर में कांटा चुभ गया आप अपना हैंड इमीडिएटली विड्रॉ कर लेते हैं डस्ट पार्टिकल या चिली पाउडर है आप उसने आपके नोज में एंटर किया आप स्नीज करते हैं ओके अपने आर्म को आप रेज करते हैं जब बॉल इज थ्रोन योर वे सो ऑल दीज आर रिफ्लेक्स एक्शंस राइट सेंस ऑर्गन्स Some organs of our body help us to feel or sense the world around us. They are called the sense organs. We have 5 sense organs: eyes, ears, the nose, the tongue, and skin. I'm sure आप सभी को पता है. Everybody knows that we have 5 sense organs. तो इन 5 sense organs के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं, right? Eyes. Eyes help us to see the world around us. Eyes are a very delicate part of the body. So, most of the eye is hidden inside a socket in the skull. The eye is covered by eyelids. They protect the eyes from dust, strong light, sweat and injury.
Eyelashes and eyebrows give extra protection. Eyes आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे, राइट? आइज़ की हेल्प से हम अपने आसपास सारी चीज़ें देख पाते हैं, इस पूरे वर्ल्ड को देख पाते हैं. आइज़ बहुत ही डेलिकेट पार्ट है हमारी बॉडी का, इसीलिए आपकी जो आइज़ होती है वो हिडन होती है इनसाइड अ सॉकेट इन द स्कल. आई जो आईलिड से आपकी कवर्ड होती है, ये आइज़ को डस्ट, स्ट्रॉन्ग लाइट, स्वेट, इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं. आई लैशेज और आपकी जो आई ब्राउज होते हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द आई. The eyes are shaped like balls. Cornea. It is the transparent skin that covers the front of the eye. Lens. The lens focuses light on the retina. It is made up of tissues. It changes shape to make sure that the picture on the retina is as clear as possible. Iris. It is the colored part of the eye. The color is due to pigments. The eyes of different people sometimes have different colors. देखिए, आई का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कॉर्निया होता है आपका ट्रांसपेरेंट स्किन जो आई के फ्रंट को कवर करता है. लेंस क्या करता है कि ये इट फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना. ये टिश्यू से बना होता है और ये शेप चेंज कर लेता है मेक श्योर कि जो पिक्चर है रेटिना पे वो क्लियर है कि नहीं एज पॉसिबल. एंड आइरिस आपका जो कलर्ड पार्ट होता है ना एक, दैट इज आइरिस. तो ये जो कलर होता है पिगमेंट्स की वजह से होता है. तो आइज आपने देखा होगा डिफरेंट पीपल के डिफरेंट कलर्स होते हैं, राइट? सी, या स्ट्रक्चर ऑफ द आई. देन देयर इज रेटिना. This is like a movie screen which show the picture you are seeing. It has a special cells that can sense light and color. Sclera. It is a tough skin that covers the outside of the eyeball. We call it the white of the eye. Pupil. It is a small opening in the iris through which the light enters. It becomes very small in bright light and bigger in dim light. Optic nerve. It is a sensory nerve that carries messages from the retina to the brain which tells you what you are seeing. Okay. अब आपका रेटिना जो है ये मूवी स्क्रीन की तरह है आपका, कि जो पिक्चर को शो कर रहा है जो आप देख रहे हैं, राइट? और इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जो लाइट एंड कलर दोनों को ही सेंस करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज स्क्लेरा. ये टफ स्किन होती है जो आई वॉल के आउटसाइड को कवर करती है और इसको हम कहते हैं वाइट ऑफ द आई. नेक्स्ट इज प्यूपिल. ये आपका स्मॉल ओपनिंग होता है आइरिस में जिसकी जहां से आपकी लाइट एंटर करती है, जिसके थ्रू, राइट? अब ये आपका क्या होता है कि ये छोटा हो जाता है जब ब्राइट लाइट में होते हैं एंड डिम लाइट में बिगर हो जाता है. ओके, देन ऑप्टिक नर्व. ये आपके सेंसरी नर्व होते हैं जो मैसेजेस को कैरी करते हैं फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन. ओके, जो आपको बताता है कि आप क्या देख रहे हैं, राइट? टेकिंग केयर ऑफ द आइज. अब देखिए आपको आइज का देखभाल कैसे करनी है आपकी. वॉश द आइज रेगुलरली विथ क्लीन वाटर. डू नॉट रीड डिम और वेरी ब्राइट लाइट. रीड विथ करेक्ट posture. Do not read lying down. Do not read in a moving vehicle as it strains the eyes. Wear sunglasses and a hat on a bright day. Looking at the sun directly can damage your eyes. आपको क्लीन वाटर से रेगुलरली अपने आइज़ को वॉश करना चाहिए. डिम लाइट ब्राइट लाइट में ना पढ़ें. करेक्ट पॉस्चर्स में आपको रीड करना है, कभी भी लेट के ना पढ़ें. ओके, मूविंग व्हीकल में ना रीड करें क्योंकि इससे आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है. कभी भी ब्राइट डे में आप बाहर निकल रहे तो सन ग्लासेस का यूज़ करें या हैट का यूज़ करें. डायरेक्टली अगर आप सनलाइट पे देखेंगे ना, सन को देखेंगे डायरेक्टली, तो इससे आपकी आइज़ को नुकसान हो सकता है, राइट? Do not rub your eyes if they are itching. Wash them with clean, cold water and see a doctor. Don't watch TV or play computer games for long periods. Take breaks at regular intervals. आइज़ को रब नहीं करना है. कई बार इचिंग होती है ना आइज़ में, बट आपको रब नहीं करना है. इंस्टेड आप क्लीन कोल्ड वाटर से उसको वॉश कर लीजिए. और अगर इचिंग तभी भी है तो आप डॉक्टर के पास जाए. टीवी आप देख रहे हैं या कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं, लंबे समय तक ना खेलिए. रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेक लेते रहें. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज ईयर्स. Ears help us to hear various sounds. They also help us to maintain our balance. Structure of the ear. Outer ear. It is the part that we see. It acts like a funnel to catch sound waves. It also has the ear canal, which is a pathway of sounds. Inner ear. The inner ear has a snail-shaped tube called the cochlea. The tiny bones pass on the vibrations to the cochlea. From here, the vibrations travel to the brain along with the auditory nerves. अच्छा, आउटर ईयर ये पार्ट जो हमें नजर आता है ये एक फनल की तरह है जो साउंड वेव्स को कैच करता है. इसमें आपका ईयर कैनाल भी होता है जो कि एक पाथवे है साउंड्स का, राइट?
फिर इनर ईयर आपका एक स्नेल शेप्ड ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं कॉक्लिया. टाइनी जो बोन्स होती है पास ऑन द वाइब्रेशन टू द कॉक्लिया. फिर यहाँ से जो वाइब्रेशन है आपकी वो ट्रैवल करती है ब्रेन के साथ अलॉन्ग विद द ऑडिटरी नर्व्स. मिडल ईयर, it is separated from the outer ear by a thin sheet-like structure called the eardrum. There are 3 tiny bones behind the eardrum. When sound passes through the eardrum starts vibrating. The vibration then pass along the tiny bones. अब ये separated होता है आपका outer ear से एक thin sheet-like structure से, जिसे हम कहते हैं eardrum. यहाँ पे आपके 3 tiny bones होते हैं eardrums के behind. तो जब sound pass करती है ना थ्रू द ईयर ड्रम जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है. फिर वाइब्रेशन फिर पास होती है इन टाइनी बोन्स के थ्रू. राइट. टेकिंग केयर ऑफ द ईयर्स. अवॉइड लाउड म्यूजिक और अ लाउड नॉइज एज इट कैन डैमेज योर ईयर्स. कीप योर ईयर्स क्लीन बाय वॉशिंग देम व्हेन यू वॉश योर फेस. नेवर poke anything into your ear canal, not even a cotton bud. Consult a doctor in case of an earache. लाउड म्यूजिक है या लाउड नॉइज है उसको अवॉइड करें क्योंकि अपने कानों को आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकता है. ओके. जब कभी भी आप अपना फेस वॉश करें तो अपने ईयर्स को ज़रूर क्लीन करें. कभी भी किसी भी चीज़ से अपने ईयर कैनाल को पोक ना करें. नॉट इवन अ कॉटन बर्ड, उसका भी यूज़ नहीं करें. और अगर कान में दर्द है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करें. ओके. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज नोज. The nose makes us aware of things around us using the sense of smell. It tells us that a rose has a sweet smell. We also breathe through the nose. अब nose की help से आप जो है smell कर पाते हैं, right? Breathe करते हैं आप nose की help से. Structure of the nose. Nostril. The nose has 2 holes called nostrils. अच्छा, nose के जो 2 holes होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं nostrils, right? We breathe through them. It has tiny hair that prevent dust and germs from entering the body. हम nostrils के थ्रू breathe करते हैं और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे ना hairs होते हैं जो dust and germs की entry को रोक देते हैं. Okay? Next is nasal cavity. Behind the nose, in the middle of the face, there is an empty space called the nasal cavity. Septum. Between the nostrils, there is a very thin wall of bone and cartilage called the septum. अच्छा, nose के पीछे यानी मिडल ऑफ द फेस एक एम्प्टी स्पेस होता है जिसे कहते हैं नेजल कैविटी. एंड आपका एक होता है सेप्टम. नॉस्ट्रल्स के बीच में एक बहुत ही थिन वॉल होती है जो बोन एंड कार्टिलेज की होती है, उसे हम कहते हैं सेप्टम. नेक्स्ट, olfactory area. The olfactory area is up on the roof of the nasal cavity. It has many special receptors that picks up smells from the air that enters the nose. These cells send signals to the brain which identifies the source of the smell. ये olfactory area जो होता है ये आपका होता है up on the roof of the nasal cavity. इसमें बहुत सारे आपके स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल को पिक करते हैं एयर से, जो आपके नोज में एंटर करते हैं. फिर ये जो सेल्स होते हैं ये सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन को और आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्मेल. राइट. टेकिंग केयर ऑफ द नोज. अब आपको नोज की किस तरह से देखभाल करनी है. नेवर पिक योर नोज. इट इज अनहाइजीनिक एज वेल एज बैड मैनर्स. कीप योर नोज क्लीन बट नेवर क्लीन इट बाय पुटिंग एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड इट. डू इट जेंटली. Breathe through your nose and not your mouth. The hair inside the nose stops the dust in the air from entering the lungs. Never use a dirty handkerchief to blow your nose as it may cause an infection. कभी भी अपने नोज को प्रिक नहीं करना है बिकॉज इट इज़ अनहाइजीनिक एज वेल एज ये बैड मैनर्स भी होता है. अपने नोज को हमेशा क्लीन रखें बट कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर ना डालें, उसको जेंटली ब्लो करें. आप हमेशा जब भी ब्रीथ करें तो नोज के थ्रू करें, माउथ के थ्रू, क्योंकि आपके नॉस्ट्रल्स में फाइन हेयर होते हैं जो डस्ट एंड जर्म की एंट्री को रोकते हैं. राइट. कभी भी डर्टी हैंकी का यूज नहीं करें, उसको अगर आप यूज करेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है. राइट. नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज टंग. The tongue is the organ of taste. It is made up of many groups of muscles. Besides tasting food, it also helps in chewing and swallowing it. The tongue is also needed for speaking. Tongue आपका organ of taste है. टेस्ट करने के अलावा ये हमें chew करने में, swallow करने में help करता है, बोलने में help करता है. Okay? Structure of the tongue. The top of the tongue is rough because it is covered with hundreds of tiny bumps called papilla. There are taste buds on top of these papilla. Each papilla may contain from a few to 100 taste buds. These buds can sense sweet, sour, salty and bitter tastes. टॉप जो होता है टंग का रफ होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बम्प्स होते हैं जिसे हम कहते हैं पैपले. तो ये टेस्ट बर्ड्स होते हैं
इन पैपिला के टॉप पे। तो हर पैपिला में आपका 1 से कुछ 100 तक आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर ये टेस्ट बर्ड्स सेंस करते हैं, मतलब कि आपका जो भी खाना है वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, राइट, इस तरह से। तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट बर्ड्स दैट सेंस स्वीट और सॉल्टी tastes are at the front of the tongue. The taste buds for a sour taste are mainly along the sides of the tongue, and the ones for a bitter taste are at the back of the tongue. तो टंग के स्ट्रक्चर को आपके देखेंगे तो जो फ्रंट उसका होगा पार्ट वो स्वीट एंड सॉल्टी फूड को टेस्ट करता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फिर टेस्ट बर्ड्स सावर टेस्ट के होते हैं, ये आपके टेस्ट, ये जो टंग होती है टंग के साइड्स में होते हैं, एंड बिटर टेस्ट के लिए आपके टंग के बैक में होते हैं। Taking care of the tongue, when you're brushing your teeth, scrape your tongue gently with a tongue cleaner. Don't sip extremely hot soup or beverages. Always rinse your mouth after eating. Avoid eating too spicy food. आपको अपनी टंग की देखभाल कैसे करनी है? सबसे पहले जब भी आप ब्रश करते हैं उसके बाद अपने टंग को स्क्रेप करना है जेंटली टंग क्लीनर से। टंग क्लीनर्स भी आते हैं, आपको मालूम है। एंड कभी भी हॉट सूप है या हॉट कोई भी ड्रिंक है उसको सिप ना करें जो बहुत ज़्यादा हॉट है। खाने के बाद हमेशा अपने माउथ को रिंस करें और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड को भी अवॉइड करें, राइट। नेक्स्ट इज स्किन. Skin helps us to feel things. The sense of touch helps us to know about different objects even with your eyes closed. While all the other four sense organs are located in specific parts of the body, skin covers the whole body. It is in fact the largest organ in the body. Skin आपका एक्चुअल में क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, बिकॉज ये पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, ये हमें चीज़ों को फील करने में हेल्प करता है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ skin has two layers. The upper layer has cells that make skin waterproof and tough. Some cells are responsible for the coloring of skin. The lower layer has a network of nerves which help us to feel heat, pain, pressure and cold. It also has sweat glands that convert body wastes into sweat. Sweat is then eliminated from the body through millions of tiny pores on the skin. अब स्किन के आपकी दो लेयर्स होती हैं. जो अपर लेयर होती है उसमें सेल्स होती है जो स्किन को वाटरप्रूफ और टफ बनाती है. ओके, और कुछ सेल्स होते हैं जो स्किन की कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लोअर लेयर में आपके नेटवर्क ऑफ नर्व्स होते हैं जिससे हम हीट, पेन, प्रेशर, कोल्ड इन सभी को फील करते हैं. इसमें स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं जो बॉडी वेस्ट को फिर स्वेट में कन्वर्ट करते हैं. फिर हमारा जो अब स्वेट आपको जो पसीना होता है वो आपका एलिमिनेट होता है. ये जो टाइट छोटे छोटे पोर्स होते हैं हमारी स्किन में उसके थ्रू, राइट. टेकिंग केयर ऑफ स्किन. Germs grow very fast on dirty, warm and moist skin. So clean your skin with soap and water every day. After having a bath, dry your skin well by rubbing gently with a towel. In case of a cut in the skin, apply antiseptic lotion or cream. तो देखिए आपकी डर्टी, वार्म या मॉइस्ट स्किन में जो जर्म्स है वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं. तो हमेशा अपनी स्किन को क्लीन रखें सोप एंड वाटर से. नहाने के बाद अपनी स्किन को अच्छे से रब करें एक टॉवल से. एंड कभी भी स्किन पे अगर कोई कट हो जाए तो उस पर हमेशा ही एंटीसेप्टिक लोशन या फिर क्रीम ज़रूर अप्लाई करें. राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.